નમસ્કાર, સનસનીખેજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। નજર કરીએ સમાચાર પર। વડોદરા શહેરના પોલો ક્લબ રાજમહેલ રોડ ખાતે વડોદરા ડોક્ટર્સ સેલનું મહાસંમેલન યોજાયું। વડોદરાના પોલો ક્લબ રાજમહેલ રોડ ખાતે વડોદરા ડોક્ટર્સ સેલનું મહાસંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ડોક્ટરોને ચૂંટણી અંગે ભાજપની તરફેણમાં મતદાનથી થનારા ફાયદા અંગે પાઠ ભણાવ્યો હતો। ડોક્ટર્સ સેલનું આ મહાસંમેલન ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલની પ્રેરણાથી અને પ્રદેશ મહામંત્રી ભાર્ગવ ભટ્ટના માર્ગદર્શન સાથે શહેર પ્રમુખ વિજય શાહની અધ્યક્ષતામાં સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો હતો। વડોદરા ડોક્ટર્સ સેલના મહાસંમેલન માટે ડોક્ટર સેલના મધ્ય ઝોન ઇન્ચાર્જ મિતેશ શાહ તથા ડોક્ટર સેલ સહ કન્વીનર રોહન પંડ્યા સહિત કારોબારી સભ્યો દ્વારા શહેરના તમામ ડોક્ટરોને નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું હતું। ડોક્ટર સેલના મહાસંમેલનમાં શહેરના મોટા ભાગના ડોક્ટરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વડોદરા ડોક્ટર્સ સેલના મહાસંમેલન પહેલા કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ ગોકુલ પાર્ટી પ્લોટ નીલાંબર સર્કલ ગોત્રી રોડ ખાતે સાંજના 7 વાગે વેસ્ટ ઝોન સમસ્ત વૈષ્ણવ વણિક પરિવાર દ્વારા વધુ મતદાન જાગૃતિ સંમેલનનું ભારતીય જનતા પાર્ટીની તરફેણમાં કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કેન્દ્રના સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ જેમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મતદારોને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વૈષ્ણવ વણિક પરિવાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ત્યારબાદ વડોદરા ડોક્ટર્સ સેલના મહાસંમેલનમાં જવા માટે તેઓ રવાના થયા હતા। છેલ્લા 2 વર્ષ દરમિયાનમાં ઘણા બધા કાર્યક્રમો આપ લોકોના સરકારથી થયા છે અને માટે જ આજના કાર્યક્રમમાં વિશેષ રીતે માનનીય શ્રી રાજનાથસિંહજી ઉપસ્થિત છે। ચૂંટણીના સમયગાળામાં આપ જાણો છો કે સમયની પાબંદીને કારણે 10 વાગ્યા સુધીમાં કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરવાનો છે અને માનનીય રાજનાથસિંહજીને ત્યાર પછી અમદાવાદ ખાતે પણ અન્ય મીટિંગમાં જવાનું હોવાથી આહવાન કરવું જોઈએ અને નરેન્દ્રભાઈએ એક આહવાન કર્યું કે દરેક લોકો પોતાના ઘરે દીવડા પ્રગટાવે અને દીવડા પ્રગટાવીને એ દિવાળી જેવો ઉત્સવ સૌને એવું થાય કે કોવિડ કાળમાં વળી દીપ પ્રગટાવવાનો હોય, પણ આ પણ તમને સૌને સપોર્ટ મળી રહે એની માટે આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ કર્યું હતું અને દેશની જનતા આ આપણા પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આહવાનને ઉપાડી લે। મિત્રો, આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ જે રીતે 8 વર્ષથી દેશની સેવા કરી રહ્યા છે, આપ બધાને યાદ જ છે કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતને દેશનું નંબર 1 મોડલ રાજ્ય બનાવ્યું। આપ સૌ જ્યારે બીજા રાજ્યમાં પ્રવાસે જતા હો, ક્યાંક વેકેશનમાં જતા હો, ચોક્કસ ક્યાંક ગુજરાતીમાં વાતચીત થઈ જાય એટલે બીજા રાજ્યના લોકો એવું કહેતા હતા કે આપ ગુજરાત से आए हो, ऐसा करो ने हमारे स्टेट में भी थोड़े महीनों के लिए हम आपके मुख्यमंत्री को हमारे यहाँ भेज दो। આપણા કેટલાય દીકરાઓ 20,000થી વધારે દીકરાઓ અને 2,000થી પણ વધારે બિઝનેસમેનો યુક્રેનમાં વસતા હતા। દીકરાઓ ભણવા ગયેલા હતા અને એ ડૉક્ટરનું ભણવા ગયેલા। યુક્રેન અને રશિયાના પ્રેસિડેન્ટ સાથે વાત કરીને આપણા વિદ્યાર્થીઓને બહાર લાવવા, ભારત દેશ લાવવા માટે નરેન્દ્રભાઈ વાત કરે, 5 કલાક યુદ્ધ રોકાવી દે અને આપણા બાળકોને બહાર લાવે। અરે બહારના દેશના લોકો પણ આપણા રાષ્ટ્રધ્વજને લઈને બહાર નીકળ્યા। આ આપણી દેશના રાષ્ટ્રધ્વજની આન બાન અને શાન વિશ્વમાં અપાવવાનું કામ આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ કર્યું। આવા વડાપ્રધાન જ્યારે આપણે બધા સારી રીતે ઓળખતા હોઈએ ત્યારે આપ સૌ અહીંયા આટલો ટાઈમ કાઢીને પણ એક ભારતીય જનતા પાર્ટીને સપોર્ટ કરવા, આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને આશીર્વાદ અપાવવા અને આપવા આપ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છો। આપ સૌને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું।
और भारत की संसद में भी जो बराबर प्रभावी भूमिका निभाती हैं, ऐसी हमारी श्रीमती रंजनाबेन पटेल भट्ट, भार्गव भट्ट, डॉक्टर मितेश शाह, डॉक्टर रोहन पांड्या, मिस्टर बालूभाई शुक्ला, मिस्टर सुनील सोलंकी, मिस्टर जसवंत सिंह सोलंकी, मिस्टर राकेश सेवक, त्रिपराक्रम जडेजा और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित चिकित्सक बहनों एवं भाइयों हैं, राजेंद्र जी हम मिनिस्टर हमारे, ये मैं इतनी जल्दी में हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपनी बात की कहाँ से शुरुआत करूँ। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, भारत को सशक्त भारत बनाना है, भारत सारे विश्व का नेतृत्व करे, ऐसी स्थिति में पहुँचाना है। और हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, भारत का दिल तो बहुत बड़ा है कि हम अपना ही कल्याण नहीं चाहते, हम सारे विश्व का कल्याण चाहते हैं। दुनिया का अकेला देश भारत है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो भारत की धरती से। इसलिए बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका संबल चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 10 बजे करप्शन का मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने एक बार चिंता व्यक्त की थी, क्या करें, मैं 100 रुपया ऊपर से भेजता हूं, बामुश्किल नीचे 14 रुपया पहुंच पाता है लोगों की जेब तक। ये कहा था उन्होंने प्रधानमंत्री जी। लेकिन आपने देखा उन्होंने लाचारी व्यक्त की थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने सिस्टम में ऐसा बदलाव ला लिया कि यदि दिल्ली की बैंकों से 100 रुपया निकलता है तो 100 का 100 रुपया जो है लोगों की जेबों में पहुंचता है। यानी करप्शन को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, करप्शन को हम रूट आउट करना चाहते हैं, तो भाषण देकर नहीं हो सकता, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा। और इस काम को भारतीय जनता पार्टी ने करने में कामयाबी हासिल की है। क्षमा कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे देश से करप्शन पूरी तरह से रूट आउट हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन हो सकता है तो इसी तरीके से हो सकता है। इसलिए मैं यह बातें कह रहा हूं। तो कई ऐसे करिश्मेटिक काम हुए हैं और शताब्दी में भी कहना होगा, सचमुच गुजरात की गौरव अस्मिता का प्रतीक यदि कोई बनकर खड़ा हुआ है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। अब हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स होंगे वो कहेंगे कि साहब ये तो आपके नेता हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं। अरे मैं कहा कमजोरी तो बतलाओ, कुछ कमी दिखाओ। कुछ सोच समझ कर कह रहा हूं। यह सब करिश्मे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं करता था। यह सब सारा इस देश में हो रहा है। यूएस बेस्ड डाटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने भी एक सर्वे किया है, दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता यदि कोई है तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। ये हमारा नहीं है, ये उनका है। तो बहनों भाइयों, खत्म। अब मैं भी जल्दी में हूं, क्या करें। यहाँ की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने तो यह भी फैसला कर दिया है कि हम 2500 ऐसे RLUs मेरे कुछ कंपोनेंट्स उनके बारे में फैसला कर लिया है कि अब हम दुनिया के दूसरे देशों से नहीं मंगाएंगे, अब हम भारत की धरती पर इसे बनाएंगे। बड़े फैसले हैं। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में इस देश को ले जा रही है और जो नेतृत्व है इस समय, वो भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, भारत की इज्जत को बढ़ा रहा है, और उसी दिशा में हम लोगों को जाने की जरूरत है। मैं कहूँगा एक बात तो आप लोग कहेंगे कि बहुत ये एग्जैगरेशन है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, और अब टारगेट भी तय कर दिया है
कि 2047 समाप्त होते होते 2,45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हम एक्सपोर्ट करेंगे। और बिल्कुल हम इसकी समीक्षा हर वर्ष करेंगे। माने हम ही रहेंगे रक्षा मंत्री, आवश्यक नहीं है, जो भी रहेगा। लेकिन एक दिशा तय कर दी गई है। कोई भी गवर्नमेंट आएगी एकदम बिल्कुल इससे डेविएट नहीं कर सकती है। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से बड़े बड़े कदम उठाए हैं। मैंने तो 410 आइटम की लिस्ट जारी कर दी कि 410 आइटम्स किसी भी सूरत में हम दुनिया के दूसरे देशों से नहीं लेंगे। कुछ आइटम्स 2022 के बाद नहीं लेंगे, कुछ आइटम 2023 के बाद नहीं लेंगे, कुछ आइटम 2024, 2025 ऐसे करके 410 आइटम्स हमने तय कर दिए हैं कि हम दुनिया के दूसरे देशों से निर्धारित समय के बाद किसी भी सूरत में नहीं लेंगे, भारत में ही बनेंगे। और वैसे ही हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैंने कई हैं। मैं देखता हूं महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, अहिंसा का रास्ता अख्तियार करते भारत को आजादी मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे देश को एक किया, एक सूत्र में बांधा, सारी रियासतों को। मैं तो कहता हूं कि भारत की गौरव और अस्मिता के प्रतीक ये हमारे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये अचंभित करने वाली बात होगी कि यह कैसे हो सकता है। भारत पराश्रयी या दुनिया के दूसरे देशों पर आश्रित रहने वाले देश के रूप में दुनिया में नहीं जाना जाना चाहिए। भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, भारत को स्वावलंबी होना चाहिए, भारत को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। यह संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का और हमारी सरकार का। मैं हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बातें आपको बतला सकता हूं, लेकिन समय नहीं है। इसलिए मैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो मैं देखता हूं उसके बारे में जरूर मैं कहना चाहूँगा। डिफेंस मिनिस्ट्री में हम लोगों ने फैसला कर लिया 2019 में कि भाई भारत को डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। सबसे ज़्यादा यदि हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस में, चाहे टैंक हो, गोले हों, बारूद हों, मिसाइल्स हों, तोप हों, एमिनिशंस हों, टैंक हों, अधिकांश चीज़ें दुनिया के दूसरे देशों से। उतना ही नहीं, यदि कोई उसका कंपोनेंट, कोई उसका पार्ट घिस गया, खराब हो गया, तो उसको भी हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाते थे। हालत ही थी। हम लोगों ने फैसला किया कि बहुत हो गया, कब तक हम दुनिया से लेते रहेंगे। अब यह सब सारी चीजें भारत की धरती पर बननी चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बननी चाहिए, और केवल भारत के लिए नहीं बननी चाहिए, सारी दुनिया के लिए बननी चाहिए। यानी मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। यह हम लोगों का संकल्प, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2014 के पहले जहां 900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, आज इतने ही कम समय में हम 19,000 करोड़ रुपए तक का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2 साल की महामारी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर जितना एडवर्स इंपैक्ट होना चाहिए था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने नहीं पड़ने दिया। यह सूझबूझ और उनकी नीतियों का परिणाम है। तब जाकर यह स्थिति पैदा हुई है। और हमारा भारत आज के 6 साल 7 साल पहले कहां खड़ा था? इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यदि देखें तो हमारा भारत 9वें, 10वें, 11वें स्थान पर था। 6 साल के अंदर वह करिश्मा हुआ कि आप भी सीना ठोक कर कह सकते हैं कि भारत इस समय दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया है। शेपो देखिए, कोरोना महामारी के संकट से सब सारी दुनिया जूझ रही थी, तो अमेरिका जैसा भी
आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस वहां भी पैदा हो गई, दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां भी। लेकिन उस संकट से उबारने में जो कामयाबी हमारे प्रधानमंत्री ने हासिल की है, मैं आज दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकता हूं कि विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। तो हम इकोनॉमिक्स की जानकारी हमारी है, उस आधार पर बहनों भाइयों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2030 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। और मैं तो सचमुच इतना आशान्वित हो गया हूं, इतना आशान्वित हो गया हूं कि मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो आज़ादी का अमृत काल समाप्त होते होते यानी 2047 में भारत दुनिया की टॉप इकॉनमी बनकर खड़ा हो जाए, देश की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो जाए। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह विश्व की मानी जानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, भारत की सरकार ने जो कुछ भी किया है, यहाँ के प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी किया है कोरोना महामारी को लेकर, उसकी प्रशंसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है, यह राजनाथ सिंह नहीं कर रहे हैं। कोरोना का बहुत बड़ा संकट था, इस महामारी से सारा विश्व प्रभावित था। जिस समय भारत में यह महामारी आई उस समय संसाधनों की कमी थी, डॉक्टर्स भी एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कौन सी दवा इस पर कारगर हो सकती है। दवाएं उपलब्ध नहीं थी, वैक्सीन नहीं बनती थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं थे। लेकिन इन सारे संकटों से 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने समाप्त होते होते भारत ने निजात पा ली, छुटकारा पा लिया। संकट आए हैं, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी सरकार ने निभाई है। अब जैसे मैं रशिया और यूक्रेन, ये कन्फ्लिक्ट, इसकी भी मैं चर्चा करूं, तो आप जानते हैं कि लगातार बम चल रहे थे, गोले चल रहे थे, मिसाइल्स चल रही थी, यूक्रेन में लोग मारे जा रहे थे। और हमारे यूक्रेन के जो विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उनके गार्जियंस यहाँ पर बराबर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे, चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चे को यूक्रेन से निकालिए। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने जो करिश्मा किया है, शायद सभी को इस बात की जानकारी ना हो। हम लोगों को भी लगता था कि क्या करेंगे प्रधानमंत्री, किससे बात करेंगे, लेकिन साहस का परिचय दिया और प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, मिस्टर बाइडेन यूएस के राष्ट्रपति से बात की। उसी समय टेलीफोन मिलाया, रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन से बात की और वहीं पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की से बात की और कई घंटे के लिए युद्ध रोक दिया गया और सारे भारतवासी वहां से लौटकर भारत आ गए। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। और मैं कह सकता हूं, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए, गुजरात की धरती पर पैदा हुए नरेंद्र भाई मोदी, जिनको आपने भारत का प्रधानमंत्री बनाया। बहनों भाइयों, कुछ करिश्माई काम किए हैं। हम लोग साथी काम करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं तो यह कल्पना भी नहीं करता था। करिश्माई काम किया है। पूरे कमिटमेंट के साथ आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए, यह उन्होंने आपसे अपील की है। तो डॉक्टर्स को जितना मैं जानता हूं, डॉक्टर्स के अंदर केवल कमिटमेंट ही नहीं होता है, बल्कि फुल डेडिकेशन होता है, तभी भारतीय जनता पार्टी को। बातें बहुत लंबी हैं, कम से कम मैं सारी बातों की यहां चर्चा करूंगा तो घंटे 1.5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद, यानी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन बहनों भाइयों, आपको गर्व की अनुभूति होगी कि आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। यह है भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत में।